کی سلامتی ہو. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ کو پرنس آف پیس ٹی وی میں یہ موقع دیا، اور میں بڑا خوش ہوں. اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور ڈاکٹر فرانسس صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے بھائی نعمان صاحب ہیں جو کہ اس پرنس آف پیس ٹی وی میں موجود ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور بھائی نعمان سے ہم پوچھتے ہیں، سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ ہم مسیحیت میں کیسے رہنا چاہیے؟ خدا یسوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو جو اس وقت ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر روز اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ہم خدا کی بہت زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ جیسا کہ ناظرین کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کی بات بات پر شکر گزاری کیا کرو اور اس کے نام کی ستائش کیا کرو. اور آج پیسہ بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. ہم ڈاکٹر فرانسس صاحب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کویسچن کیا کہ ہم محبت سوال آپ کا کون سا ریپیٹ کریں؟ ہم مسیحیت میں کیسے رہنا چاہیے؟ جب ہم مسیحیت میں تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے. تو ناظرین سب سے پہلے کہ جو لوگ مسیحیت کے بارے میں نہیں جانتے، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خادمین سے جو ان کے علاقہ میں آتے ہیں خادم، سب سے پہلے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسیحیت کو نہیں جانتے وہ خادموں سے بھی بہت زیادہ دور رہتے ہیں. وہ خادموں کی بھی بہت زیادہ سوال جو آپ جو کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو خادم ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور ان سے سیکھیں کہ مسیحیت کیسے ہمیں مسیحیت میں رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آنا چاہیے. ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بائبل کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کیجیے، تاکہ بائبل میں بائبل ہی ایسی واحد کتاب ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھانے کو دیتی ہے اور وہی ہماری اچھی تربیت کرتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ بائبل کو ریڈ کرنا چاہیے، اور خدا یسوع مسیح کی جو محبت ہے جو اس نے ہمارے لیے کلوری پر اپنی جان کو دے دیا، اور اس محبت سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تھینک یو گائز. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، خداوند آپ کو برکت دے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کریں. جی بائبل مقدس کے بارے میں تو سبھی بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس میں. تو جو میں جانتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے، اور زندگی کی جو باتیں ہمیں اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور اس کے ہی وسیلہ سے ہم آج اگر دیکھیں تو چل رہے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے آج ہمیں تمام نعمتیں جو برکات ہمارے اندر ہے وہ سارا اسی میں سے ہے. اور ہم شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کا کہ اس نے ہمیں یہ بہت اچھی روحانی کتاب سے نوازا کہ ہم اس بائبل میں سے سیکھیں، اس کی باتوں کو جانیں، اس کی سٹوری کو، اس کی لائف کو، اس کے لائف سٹائل کو اور کاپی کریں، اور اپنی زندگیوں میں وہی لائف سٹائل لے کے آئیں تاکہ لوگ ہمیں یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں جان سکیں. تو بائبل جو ہمارے لیے بہت اچھا ایک زندگی بسر کرنے کا بہترین نمونہ ہے. آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بڑے خوبصورت ڈاکٹر فرانسس صاحب بیٹھے ہیں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا واضح کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بائبل مقدس میں قیامت اور زندگی کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. جی بہت شکریہ پاسٹر کمر ڈیوڈ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پرنس آف پیس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمیں آج اپنے پروگرام میں سوال و جواب میں مدعو کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. اور یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا پروگرام ہے سوال و جواب کا جو آپ پرنس آف پیس ٹی وی پر کرتے ہیں. بہت اچھے کمنٹس ہمیں ناظرین دیتے ہیں، اور ناظرین آپ کے پروگرام کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. تھینک یو. تو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا آج سوال رکھا ہے ہمارے سامنے کہ قیامت اور زندگی کے بارے میں ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتی ہے بائبل مقدس. جی. تو یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت فرمایا جب یسوع مسیح جب اس کا دوست لازر مر گیا، جی، تو جب آپ اس کے گھر گئے اس کی بہنوں کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو لازر کی بہن ہے مارتھا وہ کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی
ना मरता। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो रोज़े क़यामत को, यानी रोज़े महशर को क़यामत के रोज़ जी उठेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, तो तू कहती है कि वो रोज़े क़यामत वो जी उठेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी घड़ी उनको अपने साथ लिया और वहाँ पर जाकर कब्रिस्तान में जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने एक आवाज़ दिया, लाजर कब्र से बाहर आ गया। तो वह लाजर कफन समेत कलाम खुदा में लिखा है कि वो जी उठा और सब लोगों ने खुदा की तमजीद की। ये है क़यामत और ज़िंदगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ। जी बिल्कुल। जो उस पर ईमान लाते हैं वो कहते हैं कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। तो जब हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, जी बिल्कुल, जान करने की हालत में है, जी जी, तो खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, तो उन्होंने वो करके दिखाया। बिल्कुल। जो लोग उनको अजियत पहुंचा रहे थे, दुख पहुंचा रहे थे, आपने खुदावंद यीशु मसीह ने आपने बाप से कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो वहां पर हम जब देखते हैं कि एक डाकू जब खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में है, यानी वो क़यामत और जिंदगी का मालिक है, और उसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी में है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी क़यामत और जिंदगी है। जो कोई उस पर ईमान रखता है वो मरता नहीं, बल्कि उसमें सो जाता है और दोबारा उठने का इख्तियार वो यीशु मसीह उसे अता करता है। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है और कलाम के मुताबिक, और जैसे कि लिखा भी है यूहन्ना की 11 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है जी कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर मान लाता है वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। अगर कोई जिंदा है वो मान लाता है, बल्कि वो अब तक कभी ना मरेगा। ये देखें, ये अमान होता है। जो लोग अपने अमान, अपने अकीदे को पुख्ता रखते हैं, वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी और मौत का अख्तियार मेरे पास है, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जैसे कि डाकू ने उस वक्त तस्लीम किया कि यीशु जिंदा खुदा है, तो उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में है। और डॉक्टर साहब दूसरा मेरा सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस वाहद ऐसी मुकद्दस किताब है जो दुश्मनों से भी मोहब्बत रखती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने वाज़ेह फरमाना है। कैसे रखती है, इसकी जो कुव्वत है, इसका अंदाज कैसा है, इसका जितना भी आदमियों से, इंसानों से। जी पास्टर कमर डेविड साहब, बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा, लसानी और ला तब्दील कलाम है जी, और बाइबल मुकद्दस हर शोबे जिंदगी में हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। बिल्कुल। और जब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो सच्चाइयाँ कलाम खुदा में बयान की गई हैं, यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, और जो लफ्ज़ उन्होंने कहे वो करके दिखाए। और हमने देखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग दुख पहुंचाते थे तो वो उनके लिए शिफायत करते थे। वो खुदावंद से, खुदा से उनकी शिफायत करते थे और कहते थे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत करके उसने हमें ये साबित कर दिया, एक आला नमूना अता किया कि जो कोई इंसान दे नहीं सकता इस तरह का नमूना, क्योंकि उनकी ज़ात बाबरकत ऐसी है कि वो उसमें कोई छल नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वाहद एक हस्ती खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में है जिन्होंने ये दावा किया कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो उन्होंने हमें एक नया हुक्म दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे के साथ
इसी तरह मोहब्बत करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। दरख्त की पहचान उसका फल होती है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बिल्कुल। तो जब हमारा नेक चाल चलन लोग देखते हैं, हमारी अच्छी बातें लोग हमें देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मसीह के मानने वाले मसीही लोग। तो हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए, हमारी जिंदगियों से ये जाहिर होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और फरमाया कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। और खुदा यीशु मसीह ने हमें खुद कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। यहाँ तक कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारो तो तुम दूसरा भी उसकी तरफ फेर लो। और यहाँ तक कहा कि कोई तुम्हें बेगार में एक कौस ले जाना चाहे तो तुम 2 कौस उसके साथ चले जाओ। जो तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे उसे चोगा भी अच्छा दे दो। तो ये बहुत ही आला नमूना खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ात बरकत से खुद पेश करके, खुद ज़ाहिर करके ये बता दिया कि आपने भी तुमने भी ऐसा ही नमूना दूसरों के साथ ऐसे ही पेश आना है, ऐसे ही तुमने दूसरे इंसानों के साथ जिस तरह मैंने मोहब्बत की है इसी तरह तुमने कर। आमीन आमीन। इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है सवाल जवाब का ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब के साथ ख़त्म करने से पहले हम दुआ करेंगे। खुदाए कदूस, हम बड़ी आजी, इनकसारी और फरोतनी हलीमी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी मेल मिलाप और फाकत के लिए। पास्टर कमर डेविड साहब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, नमान साहब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। और खुदावंद प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए दुआ करते हैं कि तू और ज्यादा अपने बंदों को अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर, अपने पाक रूह का गहरा मसा अता कर, ताकि पाक खुदा तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। जो लोग आज सवाल जवाब के प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं उनके लिए भी खुदा उससे बरकत की दुआ करते हैं। इन सब को छू बड़ी बरकत दे और खुदा उनके घरों को, खानदानों को, खुदा बच्चों को, खुदा इनको बड़ी बरकत दे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। अगर कोई इनमें बीमार है, परेशान है, दुख तकलीफ मुसीबत में मुब्तला है, करब की हालत में है, आज तू खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, इनको शिफायाबी अता कर। इनके बदनों के अंदर जो भी बीमारियां तेरे यीशु नाम के वसीला से जाती रहें। पित्ते का प्रॉब्लम, गुर्दों में स्टोन है, पत्थरियां हैं, खुदा गिल्टियां रसौलियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव हो जाए। जिगर का मसला, हेपेटाइटिस ABC, शुगर, ब्लड प्रेशर, तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से बिल्कुल इनको बदनों से फिलफोर जाता रहे। खुदा तो अपने जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। इसी के साथ हमको दें इजाज़त, फिर अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।